Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students, and welcome to another online session of Pakistan Studies P2 Environment of Pakistan. In our today's lesson, we are about to explore chapter number 6 of your syllabus from paper 2, and that is entitled with the name of Fishing Industry of Pakistan. As I have told you in the previous lessons, that Pakistan is Alhamdulillah blessed with many natural resources. Likewise, we have discussed forests as a natural resource in chapter number 4. In chapter number 5, we were discussing minerals as a natural resource of Pakistan. So, in chapter number 6, we are going to explore fishing or fish as a natural resource for Pakistan's progress and the future prospects, even as well. So in chapter number 6, bete, we have very simple assessment objectives to cover up as Pakistan is Alhamdulillah having almost 531 plus species of fish in different capacities, and how this natural resource could be the game changer for Pakistan in the future. This is going to be the main agenda of our today's discussion. आज के ऑनलाइन सेशन को हम तीन हाफ्स में डिवाइड करने जा रहे हैं. फर्स्ट हाफ में आई विल बी लेटिंग यू टू अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ answering and solving the assessment objective sheet, which I have always given you during my physical lessons for different chapters. Then in the second half we will be discussing topicals of chapter number 6, fishing industry in Pakistan, because topicals say definitely you will be getting opportunity to understand कि कैसे different learning objectives जो इस chapter में आपके examiner ने set किए for your evaluation, they are going to be floated in front of you at exam day to test your knowledge about geography, which is paper 2 of your Pakistan studies as a subject of O levels, IGCSE, or other modules like Edexcel or AQA. So fishing industry in Pakistan is what we have to be part of in our today's lesson. Or as usual, we are going to start it from first and the foremost thing, which is going to be mandatory for us for dealing with every chapter in effective way, and that is to have insight about its learning objectives. जब हम चैप्टर नंबर 6 की बात करते हैं, तो वी आर बीन told by our examiner that what key knowledge we need to know from this unit. Or going to inshallah display the assessment objectives of this chapter in 2 seconds for your assistance on your display screen, so that I can recall, I can tell you once again how important it is in geography to have your hands upon assessment objectives or learning objectives before you are going to be part of any chapter's discussion, and you are going to be claiming your efficiency in that unit even as well. So अगर हम assessment objectives की बात करते हैं, तो इस चैप्टर के अंदर वी हैव ओनली 7 assessment objectives which are very simple, very basic to discuss, or sometimes this chapter can be a very handy source to get your 100% performance in the paper 2 of yours. तो सबसे पहले तो हम देखते हैं what key knowledge we need to know from this chapter. As I've told you that this is the constitution of your better grades. अगर आप नोट्स को स्टार्ट करोगे, अगर आप बुक को स्ट्रेट अवे स्टार्ट करोगे क्रैम करना, तो डेफिनेटली आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें एक्स्ट्रा कवर करनी पड़ेंगी जो कि इवन आपके एग्जामिनर ने आपसे असेस ही नहीं करनी है. लेकिन अगर आप लर्निंग ऑब्जेक्टिव के कॉन्टेक्स्ट में स्टार्ट करोगे, तो यू विल बी हैविंग पिन पॉइंट एक्यूरेसी ऑफ योर लर्निंग प्रोसेस फ्रॉम पेपर 2 और पेपर 1 ऑफ पाकिस्तान स्टडीज़. तो जब हम यहाँ पर देखते हैं आपके सामने असेसमेंट ऑब्जेक्टिव शीट पर, तो हमारे पास सिंपल से 7 असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं इस यूनिट के. सबसे पहले तो वी हैव टू डिस्कस द फिशिंग मेथड्स विच आर यूज्ड इन बोथ मेरीन एंड इनलैंड वाटर्स, इंक्लूडिंग फिश फार्म्स. तो सबसे जो इम्पोर्टेंट और जो सबसे इनिशियल डिबेट है इस चैप्टर में, ये है कि आप एज अ स्टूडेंट ये समझोगे कि इनलैंड फिशिंग और मेरीन फिशिंग में क्या डिफरेंस होता है. आपके लिए मैं आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर एक इन्फोग्राफ डिस्प्ले करता हूँ, जिससे आप बहुत इजीली इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर पाओगे, और अपने फ्यूचर के कॉन्टेक्स्ट में जब इस चैप्टर को प्रिपेयर करोगे या इसके रिलेटेड क्वेश्चंस को आंसर करोगे, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको बहुत से डिफरेंट क्वेश्चंस को आंसर करने में काफ़ी हद तक हेल्प आउट करेगी. सबसे पहली चीज़ तो ये है कि बेटे पाकिस्तान के अंदर बहुत से नेचुरल रिसोर्सेज अल्लाह ताला की कुदरत की वजह से, और हमारे मुल्क की एक यूनिक कॉन्टेक्स्ट में जो एट्रीब्यूट्स हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में अवेलेबल हैं, और इसमें जो फिशिंग है दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल वन.
अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में 531 प्लस स्पीशीज़ ऑफ फिश जो है वो पाई जाती हैं, और कुछ इनमें से जो है वो इनलैंड स्पीशीज़ हैं, कुछ मेरीन स्पीशीज़ हैं। अब इनमें मेजर डिफरेंस क्या होता है, इसके लिए हम आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर जो इंफोग्राफ है उसको यूज़ करेंगे टू establish our basic understanding about this concept. जो फिशिंग प्रैक्टिसेस हैं दे आर मोस्टली डन ऑन टू स्केल्स। एक तो आपकी है इनलैंड फिशिंग, दूसरी है आपकी मेरीन फिशिंग। आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पे जो इन्फोग्राफ है दैट इज टेलिंग यू इन अ वेरी सिंपल वे दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनलैंड एंड मेरीन फिशिंग। इनलैंड फिशिंग वो है जो आप अ, अपने लोकल जो डोमेस्टिक बॉर्डर्स हैं उनके अंदर जो वाटर बॉडीज अवेलेबल है उन पर रहते हुए जो फिशिंग प्रैक्टिसेस करते हो दैट इज़ कॉल्ड एज इनलैंड फिशिंग प्रैक्टिस, जिसमें आपके दरिया हैं, आपके कैनाल्स हैं, स्ट्रीम्स हैं, ओएसिस हैं, या जो भी वाटर बॉडी आपके मुल्क के बॉर्डर्स के अंदर अवेलेबल है दैट इज़ गोइंग टू बी कॉल्ड एज इनलैंड फिशिंग प्रैक्टिस। और मेरीन फिशिंग प्रैक्टिस क्या है, जैसे कि वी हैव लर्नड इन चैप्टर नंबर 1 टोपोग्राफी ऑफ पाकिस्तान, कि पाकिस्तान का जो टोटल कोस्टल एरिया है दैट इज़ 1046 किलोमीटर्स, और इस 1046 किलोमीटर्स के रेडियस पे जो आप फिशिंग प्रैक्टिसेस करते हो दैट इज़ गोइंग टू बी कॉल्ड एज मेरीन फिशिंग। या इनसाइड द अरेबियन सी जो आप फिशिंग प्रैक्टिसेस कर रहे हो या फिशिंग एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हो दैट इज़ गोइंग टू बी नोन एज मेरीन फिशिंग। सो द सिंपलेस्ट डिफरेंस बिटवीन इनलैंड फिशिंग एंड मेरीन फिशिंग इज़ कि आप दरिया में, फिश फार्म पे, किसी लेक में, कैनाल्स में जो फिशिंग करते हो दैट इज़ गोइंग टू बी कॉल्ड एज इनलैंड फिशिंग। in a official way or a formal way you can say that those inland fishing is that fishing practice which is done on those water bodies which are available inside the country's borders. और मेरीन फिशिंग क्या है, दैट फिशिंग प्रैक्टिस विच इज़ डन इन द सी और ऑन द शोर और द कोस्टल रीजन दैट इज़ गोइंग टू बी कॉल्ड एज मेरीन फिशिंग. तो दिस इज़ व्हाट द बेसिक डिफरेंस इन द फर्स्ट मेजर एरिया ऑफ आर कंसर्न फ्रॉम दिस चैप्टर. इसके साथ साथ हम देखते हैं जो हमारा पहला असेसमेंट ऑब्जेक्टिव है वो कैसे हमें कवर अप करना है और क्या नॉलेज हम अपने एग्जामिनर के सामने डिस्प्ले कर सकते हैं टू इज दिस पार्ट ऑफ योर असेसमेंट ऑब्जेक्टिव एरिया. सबसे पहली जो चीज़ आपका एग्जामिनर माइट भी आपसे एग्जाम डे पे पूछे दैट इज़ के इनलैंड और मेरीन जो फिशिंग प्रैक्टिसेस हम पाकिस्तान में कर रहे हैं किन मेथड्स के थ्रू कर रहे हैं. और मैंने आपको अपने फिजिकल लेसन्स में बताया था कि जो असेसमेंट ऑब्जेक्टिव शीट है उसको फिल अप करना इज़ वन ऑफ द वे टू गेट योर 100% रिजल्ट्स डन. और यहाँ पर जब हम उस असेसमेंट ऑब्जेक्टिव शीट को देखते हैं, आई हैव गिवन एंड आई विल गिव यू ऑल द असेसमेंट ऑब्जेक्टिव शीट्स of the 12 chapters of geography we have in the syllabus or 8 topics of concern in 2059 or 0448 Pakistan studies. तो यहाँ पे ये जो असेसमेंट ऑब्जेक्टिव शीट का कॉलम है जिसमें हमें मेथड्स यूज्ड फॉर फिशिंग इन पाकिस्तान अब देखने हैं, तो इसमें बेसिकली बेटे 3 मेथड्स हैं जो हम मोस्ट कॉमनली डिस्कस करेंगे. सबसे पहला जो मेथड है दैट इज़ योर कमर्शियल फिशिंग मेथड. और अगर हम साथ-साथ अपने असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स के कॉन्टेक्स्ट में टॉपिकल्स को देखते हैं, तो टॉपिकल्स में दीज़ क्वेश्चंस आर ऑलवेज़ बीन गिवन फॉर योर असेसमेंट ऑन दिस चैप्टर इन डिफरेंट वेज़. तो टॉपिकल सॉल्यूशन भी आज के हमारे सेशन का पार्ट रहेगा एज़ यूजुअल, और इसके साथ-साथ हम इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को भी कॉम्प्रिहेंसिवली आंसर करने की कोशिश करेंगे थ्रू दिस डिस्कशन ऑफ 45 मिनट्स. यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे जो पहला हमारा असेसमेंट ऑब्जेक्टिव था, ये दोबारा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को कम्प्लीमेंट करता है कि अगर आपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स किए हुए हैं तो आपको डिफरेंट क्वेश्चंस आंसर करने में बिल्कुल भी डिफ़िकल्टी फेस नहीं करनी पड़ेगी फ्रॉम दैट स्पेसिफिक चैप्टर. अब यहाँ पर आपके पास एक क्वेश्चन फ्लोट हुआ बाय योर एग्जामिनर इन वन ऑफ द पास्ट पेपर, एंड दैट क्वेश्चन वाज डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ commercial fish farming in Pakistan. Let me just open it up for your better insight. This is the question. Describe the methods used in commercial fish basic practices और commercial marine fishing. इसमें बेटे व्हाट इज़ कमर्शियल फिशिंग, जिसमें आप लार्ज मोटराइज्ड बोट्स यूज़ करते हो विच आर हैविंग रेफ्रिजरेशन फैसिलिटी ऑन them so that you can immediately catch the fish and can preserve it to ensure its quality and its freshness. उसके बाद इसमें आपके पास जो है वो गिल नेट्स ऑटोमेटिकली रोल होते हैं और ऑटोमेटिकली ही
पानी में स्प्रेड होते हैं थ्रू क्रेन सिस्टम और अ मैकेनाइज्ड यूनिट। उसके अलावा आपके पास जो इसमें शिप्स यूज़ होती हैं, दे आर कैपेबल ऑफ गोइंग इनटू डीप वाटर। दे कैन स्टे इन द डीप वाटर फॉर डेज, मंथ्स, इवन वीक्स एज वेल। और 60 किलोमीटर्स प्लस, और यहाँ 60 किलोमीटर विद इन द जो है आपका इंटरनेशनल बॉर्डर्स, उसमें कैपेसिटी ट्रैवल करने की शिप में अवेलेबल होती है। जो सबसे यूनिक फीचर होता है कमर्शियल फ़िश फार्मिंग में, वो ये है कि इसको प्रॉफिट्स के लिए या बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए किया जाता है। दैट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन इट एंड द स्मॉल स्केल सब्सिस्टेंस फिशिंग प्रैक्टिसेस। और इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो मेथड्स के कॉन्टेक्स्ट में, वो ये है कि इसमें टेक्नोलॉजी का जो है वो इस्तेमाल काफ़ी हद तक नज़र आता है। टेक्नोलॉजी जैसे जीपीएस सिस्टम है, रडार्स हैं, सोनार पल्सेस हैं, जिससे वो एग्जैक्ट लोकेशन अंडर द वाटर फिश की आइडेंटिफाई करते हैं और उसके बाद उसी एरिया को टारगेट करते हैं जहाँ पर उनको मैक्सिमम कैच का इंश्योरिटी होती है। तो कमर्शियल फिशिंग मेथड इज़ वन ऑफ द मेथड थ्रू विच इन पाकिस्तान और एल्सवेयर वी आर डीलिंग विद फिशिंग प्रैक्टिसेस। इसके अलावा जो एक और मेथड है जो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो टू respond to your questions of the exam in a proper way, that is small scale subsistence fishing method. Small scale subsistence fishing method is totally opposite to commercial fishing method. इसमें डाइट और उसको बेसिकली इंश्योर करना, दैट इज़ द मेन एजेंडा बिहाइंड द फिशिंग। और इसमें टेक्नोलॉजी का बहुत लिमिटेड इस्तेमाल होता है। रेफ्रिजरेटर्स, सोनार पल्सेस या रडार्स एज सच यूज़ नहीं किए जाते। मेन जो कंसर्न होता है वो आपके फ़िशिंग कम्युनिटी को फ़ीड करना, या जो पर्सनल फैमिली है उस फ़िशरमैन की, उसको फ़ीड करना होता है, ना कि बेचना फ़िश को एट लार्ज स्केल। इसमें जो शिप्स यूज़ होती हैं दे आर मोस्टली ट्रेडिशनल एंड दे कांट गो इन डीप वाटर एज द शिप्स विच आर यूज्ड इन कमर्शियल फिशिंग कैन गो। इसकी अगर एग्जांपल की बात करें तो जस्ट लेट मी शो यू द एग्जांपल कि कमर्शियल फिशिंग में कैसी शिप्स यूज़ होती हैं और ट्रेडिशनल फिशिंग जो प्रैक्टिसेस हैं वो कैसे इससे डिफरेंट हैं। तो आपके डिस्प्ले स्क्रीन पे इस टाइम एक जो बोट है उसकी जो है वो इमेज सामने है। और ये जो बोट है इससे आपको अंदाज़ा भी हो रहा होगा कि इट इज़ अ लार्ज बोट which is also having a facility to basically manage the fishing activities in a proper way। और इसमें अगर आप देख पा रहे हो तो प्रॉपर जो कंपाउंड्स बने हुए हैं, इसमें स्टोरिंग कैपेसिटी होती है अंडर ये जो बेसमेंट है इस स्पेशली शिप की, इसमें आइस जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो प्रोवाइड की जाती है, ताकि अगर 15 डेज टू 20 डेज या 1 वीक का टूर है फिशिंग जो है वो बेसिकली प्रोग्राम है, तो उसमें जो मछली वो पकड़ रहे हैं वो साथ साथ प्रिजर्व भी करते जाएं, उसकी फ्रेशनेस को मेंटेन भी करते जाएं। और इसमें प्रॉपर एक ऑर्गेनाइज्ड और एक मैकेनाइज्ड वे से फिशिंग की जाती है। दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ कमर्शियल फिशिंग बोट व्हिच इज़ यूज्ड इन दिस कॉन्टेक्स्ट। इसके अलावा अगर हम इनलैंड फिशिंग की बात करें तो इनलैंड फिशिंग इज़ मोस्टली डन थ्रू गिलनेट मेथड, जिसके अंदर गिलनेट्स यूज़ किए जाते हैं, ट्रेडिशनल बोट्स, स्मॉल बोट्स यूज़ की जाती हैं। और जो सबसे कॉमन वे है दैट इज़ द फिश फार्म। फिश फार्म जो है दैट इज़ द मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ इनलैंड फिशिंग इन पाकिस्तान और एल्सवेयर इवन एज वेल। फिश फार्म क्या होता है एंड कैसे ये ऑपरेट करता है, इट्स अ वेरी वेरी पॉपुलर क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। और मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली ये 4 से 5 दफ़ा एग्जामिनर ने आपके एग्ज़ाम पेपर को सेट करते हुए इस पॉइंट को कंसिडर किया। जैसे मैं आपसे पहले रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स को फॉलो करेंगे, you will be able to comprehensively deal with all the chapters of geography। इसी तरह से just let me open up the assessment objective list and then let me prove my point of view through the topical review even as well, कि कैसे एक assessment objective different ways के questions में आपका examiner place करता है for your assessment। फॉर इंस्टेंस ये देखिए, आपका यहाँ पे फर्स्ट असेसमेंट ऑब्जेक्टिव है, डिस्क्राइब द फिशिंग मेथड यूज्ड इन बोथ मेरीन एंड इनलैंड वाटर्स इंक्लूडिंग फिश फार्म्स। अब ये जो असेसमेंट ऑब्जेक्टिव है दैट इज गोइंग टू बी कम्प्लीमेंटेड बाय योर एग्जामिनर थ्रू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। आपके टॉपिकल्स में इस तरह के क्वेश्चंस कॉमन हैं और आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं इफ़ यू हैव द टॉपिकल्स विद यू। लेट्स सपोज यहाँ पर आपके पास ये क्वेश्चन आया, डिस्क्राइब द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फिश फॉर्म। फिश फॉर्म होता क्या है, you should be knowing it because you will be asked a definition in every question of yours।
तो यहाँ पर उसने डेफिनेशन दी व्हाट इज़ अ फिश फॉर्म। तो फिश फॉर्म क्या होता है बेटे, सिंपल सी डेफिनेशन है। फिश फॉर्म इज़ अ इनलैंड मेथड ऑफ प्रैक्टिसिंग फिशिंग एक्टिविटीज़ and it is a organized way to rear fish through inland fishing method। या आप इसको इस तरह से कर सकते हो, या अगर आप बहुत इसको फॉर्मली एक्सप्लेन करना चाह रहे हो और इसको एकेडमिकली 100% जो फॉर्मल इसकी डेफिनेशन है उसके कॉन्टेक्स्ट में लेके चलना चाह रहे हो, तो यहाँ पर मैं आपको इन्फोग्राफ शो कर देता हूँ विद द डेफिनेशन, और आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो और अपने फ्यूचर के कॉन्टेक्स्ट में इसको यूज़ भी कर सकते हो फॉर आंसरिंग द डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑफ दिस नेचर। यहाँ पर the definition is been given on your display screen, and I am basically pointing my pointer towards it. A fish farm is a controlled environment where fish are raised in ponds or tanks for food in a safe, healthy, and efficient way. So, fish farm is a systematic way of rearing the fish through inland approach। ठीक है, ये आपके सामने एक फिश फार्म की एग्जांपल भी है। इट कुड बी अ रेक्टेंगुलर shaped fish farm, it could be a fish farm which is going to be having this shape which has been shown to you on your display screen। fish farm जो है basically is a systematic way to rear fish for various needs, and it is basically a systematic way to breed, to cater, and to manage the fishing resources we have around us। इसके अलावा जो ये क्वेश्चन है इसको डिफरेंट वेज में डिफरेंट एकेडमिक एक्सपीरियंसेस में पूछा गया। जैसे लेट सपोज यही असेसमेंट ऑब्जेक्टिव आपका जो है वो डिफरेंट एग्जाम सेशंस में डिफरेंट वेज में आपके एग्जामिनर ने साइट किया फॉर योर एवेलुएशन। लेट सपोज यहाँ पर देखिए, डिस्क्राइब हाउ फिश आर रियर्ड ऑन अ फिश फार्म। यहाँ पर यू आर इन नीड टू डिस्क्राइब द लेआउट ऑफ अ फिश फार्म, और आपको एक लेआउट बताना है कि जो फिश फार्म होता है वो कैसे एक सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में बिहेव करता है व्हेन इट कम्स टू द rearing एंड मैनेजमेंट ऑफ द फिश रिसोर्सेज ऑफ योर्स। इसी क्वेश्चन को मैं कुछ क्वेश्चंस को आपके सामने प्रेजेंट कर देता हूँ ताकि हमें ये रियलाइजेशन हो सके कि क्यों असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स करना हमारे लिए ज़रूरी है। ये क्वेश्चन है जी, डिस्क्राइब द फिशिंग मेथड यूज्ड ऑन अ फिश फार्म। इसके अलावा वंस यस दिस पिक्चर केम, the question was state three ways in which the owner has improved site of fish farm। ठीक है, जो ये आपको साइट नजर आ रही है फिश फार्म की, ये कैसे जो मैनेज कर रहा है इस फिश फार्म को, उसने एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर प्रोवाइड किया हुआ है फिश रिसोर्स को जिसको वो मैनेज कर रहा है इन दिस प्रोसेस। ये डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस हैं जो आपके पहले असेसमेंट ऑब्जेक्टिव को कंप्लीमेंट करते हैं। लेट मी रोल बैक टुवर्ड्स योर फर्स्ट असेसमेंट ऑब्जेक्टिव ऑन योर डिस्प्ले स्क्रीन। तो आपका जो पहला असेसमेंट ऑब्जेक्टिव था दैट वाज कैसे जो है वो फिश एक्टिविटीज़ जो हैं वो फिश फार्म पे की जाती हैं। यहाँ पर आपको फिश फार्म का लेआउट समझ होना बड़ा ज़रूरी है, और यही पॉइंट जो है वो मैंने अपनी असेसमेंट ऑब्जेक्टिव शीट में भी मेंशन किया हुआ है कि यू शुड बी लर्निंग के फिश फार्म एज अ सिस्टम कैसे ऑपरेट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि बेटे फिश फार्म इज़ गोइंग टू बी अ रेक्टेंगुलर वन और इन अ सर्कुलर वे। दोनों वेज में इसको आप डिज़ाइन कर सकते हो। आपका जो मोस्ट प्रॉबेबली जो फिश फार्म का लेआउट हमें नज़र आता है पाकिस्तान के अंदर, जो हमारे विलेजेस में है स्पेशली गुजरांवाला, चनाब, रावी और जो ये सारे रीजन्स हैं जिनके साथ साथ हमारे ये दरिया गुजरते हैं, वहाँ पर रेक्टेंगुलर पॉन्ड्स बनाए जाते हैं। उन रेक्टेंगुलर पॉन्ड्स के अंदर आप जो सबसे कॉमन फीचर देख सकते हो दैट इज़ प्लांटेशन ऑफ ट्रीज। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो ट्रीज आर बिन प्लांटेड, एंड व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। रीज़न इज़ वेरी सिंपल कि हम चीप वे में ऑक्सीजनेशन कर सकें अपने फिश रिसोर्स की थ्रू प्लांटेशन ऑफ दीज ट्रीज। जो बहुत बड़े लेवल पे कमर्शियल लेवल पे फिशिंग की जाती है उसमें ऑक्सीजन पंप्स यूज़ होते हैं। अदरवाइज मोस्टली जो लिमिटेड बजट के अंदर फिशिंग कर रहे होते हैं या फिश फार्म्स को मैनेज कर रहे होते हैं, वो प्लांटेशंस के थ्रू इस ऑक्सीजन सप्लाई को इंश्योर करते हैं। उसके बाद फिश फार्म का एक बहुत ज़बरदस्त जो फीचर होता है वो ये होता है कि डिफरेंट कंपार्टमेंट्स बने होते हैं, डिफरेंट सेपरेट जो कॉलम्स हैं वो बने होते हैं एक ही फिश फार्म के अंदर, या एक एरिया में डिफरेंट फिश फार्म्स छोटे छोटे साइज़ के बनाए जाते हैं, और अकॉर्डिंग टू साइज़, अकॉर्डिंग टू स्पेशी वहाँ पर फिश को मैनेज किया जाता है
ताकि जो डिफरेंट ऑपोजिट ग्रुप्स हैं फिश के, जो एक दूसरे के लिए इन डेंजर रीजन ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस बन सकते हैं, उनको वो सेपरेट सेपरेट पॉन्ड्स में रखते हैं ताकि उनकी जो हेल्थ है, उनकी जो नीड है, उनकी जो नेसेसिटी है, वो सेपरेट सेपरेट वे में मैनेज की जा सके। जैसे आप ये देख रहे हो, इस डिस्प्ले स्क्रीन पे भी एक फ़िश फॉर्म आपको यहाँ नज़र आ रहा है, एक यहाँ नज़र आ रहा है, एक वो सामने दूर डिस्टेंस पे नज़र आ रहा है। इसका पर्पस ये है, डिफरेंट पार्टीशंस बनाने का पर्पस ये है कि डिफरेंट स्पीशीज़ को, डिफरेंट साइज़ेज़ की फ़िश को एक दूसरे से डिफरेंट वे में मैनेज किया जा सके और फोकस्ड वे में उनको मैनेज किया जा सके। तो दिस इज़ द सेकंड फीचर ऑफ द फ़िश फार्म। मज़ीद इस चीज़ को समझने के लिए आई एम गोइंग टू डिस्प्ले वन ऑफ द इन्फोग्राफ, और उसके थ्रू मैं आपको बहुत अच्छे से इसके फीचर्स समझा देता हूँ कि फ़िश फार्म कैसे एक सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में बिहेव करता है व्हेन इट कम्स टू rearing of fish. दिस डिस्प्ले स्क्रीन इज टेलिंग अस ऑटोमेटिक फीडर्स इंस्टॉल किए जाते हैं, जो डिजिटल भी होते हैं, कुछ मैनुअल भी होते हैं। इसमें हमें जो है वो फ़िश की जो डाइट है उसके अकॉर्डिंगली उसको सेट किया जाता है, और वो ऑटोमेटिकली फ़िश को डाइट प्रोवाइड करने में काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। तो ऑटोमेटिक फीडर्स यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद जो है वाटर क्वालिटी सेंसर्स यूज़ किए जाते हैं मोस्टली, ताकि पानी अगर गंदा है एंड इट इज़ नॉट विजिबल फॉर द फिश एग्जिस्टेंस, तो उसको रिप्लेस किया जाए। वाटर क्वालिटी सेंसर्स के अलावा गेजेस इंस्टॉल की जाती हैं, टेम्परेचर गेजेस, ताकि पानी जो है फ़िश के लिए वो आइडियल हो। 27 टू 30 सेंटीग्रेड जो है वो पानी आइडियल कंसिडर किया जाता है फॉर मैनेजमेंट ऑफ द फ़िश। तो यहाँ पर ये आप चीज़ देख पा रहे हो कि वाटर क्वालिटी सेंसर्स और टेम्परेचर गेजेस समटाइम्स इंस्टॉल होती हैं। फिर वैक्सीनेशंस प्रॉपर की जाती हैं टाइम टू टाइम, ताकि फ़िश हेल्दी रह सके, डिजीज़ेज़ को प्रोटेक्टिव वे में अप्रूव किया जा सके। तो ये एक कॉमन फीचर है कि आप बता सकते हो कि वैक्सीनेशंस आर मिक्स्ड इनसाइड द फिश फार्म टू कीप द फिश अवे फ्रॉम डिफरेंट डिजीजेज एंड वायरसेस। उसके अलावा हाई क्वालिटी फूड इनको दिया जाता है, बिकॉज कमर्शियल बेनिफिट्स आर दी मेजर इंटरेस्ट इन मैनेजिंग द फिश फार्म्स। उसके बाद डिजीज़ कंट्रोल के लिए प्रॉपर इनको हाइजेनिक एटमॉस्फेयर इंश्योर करने के लिए जो इम्बार्कमेंट्स होती हैं, जो बॉर्डर्स होते हैं उस फिश फार्म के, उनको मोस्टली कंक्रीट किया जाता है ताकि मिक्सिंग ऑफ मड या पोल्यूटेंट्स उस पानी में मिनिमाइज कर सकें मिक्सर होना। उसके अलावा एफिशिएंट वाटर यूज़, जैसे मैंने आपको बताया कि वाटर क्वालिटी सेंसर्स यूज़ होते हैं। फिर इसके अंदर प्लांटेशंस होती हैं जिससे ऑक्सीजन फ्रेश फ़िश को मिलती है। अदरवाइज़ अगर प्लांटेशंस नहीं हैं तो आप ऑक्सीजन पंप्स भी यूज़ कर सकते हैं, या कमर्शियल लेवल पे ऑक्सीजन पंप्स यूज़ होते हैं पाकिस्तान में फॉर मैनेजिंग अ फ़िश फार्म। तो अगर इसके हम लिस्ट करें तो सबसे पहले तो आप बताओगे कि डिफरेंट कंपार्टमेंट्स होते हैं या पार्टीशंस होती हैं, डिफरेंट साइज़ेज़ के अकॉर्डिंगली फ़िश को उसमें रखा जाता है, स्पीशीज़ के अकॉर्डिंगली रखा जाता है। ऑटोमेटिक फीडर्स होते हैं ताकि वो ऑटोमेटिकली जो फ़िश की डाइट है उसको उसको सप्लाई करते रहें। वाटर क्वालिटी सेंसर्स होते हैं। फिर आपके पास हाई क्वालिटी फूड होता है। ट्रीज़ प्लांटेशंस होती हैं टू प्रोवाइड द फिश ऑक्सीजन। उसके अलावा डिजीज़ कंट्रोल के लिए वैक्सीनेशन ऐड की जाती हैं, और एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू ऐसा टेम्परेचर पानी का रखा जाता है जो फ़िश की एग्जिस्टेंस के लिए सूटेबल हो। तो ये आपका सिंपल सा आंसर है टू दिस असेसमेंट ऑब्जेक्टिव। मज़ीद असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं, एज़ वी हैव 7 असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स। सो दिस वाज़ द फर्स्ट वन, मेथड्स ऑफ कैटरिंग फिश इन डिफरेंट वेज़ एंड इन डिफरेंट लेवल्स ऑफ आवर एक्जिस्टेंस और इंटरेक्शन विद दिस सेक्टर। यहाँ पर अगर आप देखो अपनी डिस्प्ले स्क्रीन पे, लेट मी वंस अगेन डिस्प्ले द असेसमेंट ऑब्जेक्टिव शीट। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ें, स्पेशली मेरे साथ पढ़ें, यहाँ पर आप इन असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स को फिल करते जाएं ताकि आप अपने डिफरेंट क्वेश्चंस को 100% एक्यूरेसी के साथ आंसर कर सकें। यहाँ पे मैंने ये फ़िश फार्म का कॉलम दिया हुआ है। आप इसके अंदर फीचर्स ऑफ अ फ़िश फार्म लिखेंगे, डेफिनेशन ऑफ अ फ़िश फार्म लिखेंगे फॉर 1 मार्कर क्वेश्चन ऑफ योर्स, 4 मार्कर, 3 मार्कर के लिए आप उसकी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे, एंड दिस असेसमेंट ऑब्जेक्टिव इज़ गोइंग टू बी डन। मेथड्स के अंदर आप ऊपर आओगे, जब मेथड्स में तो कमर्शियल मेथड हो गया, स्मॉल स्केल सबसिस्टेंस मेथड हो गया, उसके फीचर्स को डिस्क्राइब करोगे। बाय दिस फर्स्ट असेसमेंट ऑब्जेक्टिव इज़ गोइंग टू बी कंप्लीटेड। The second assessment objective or learning objective of this chapter is give examples of the fish caught in both marine and inland waters and of the fish reared on fish farms. Yes, this is a very common question from this topic. Different types के questions आपके examiners ने set किए. One of the example is on your display screen. The question is name two types of fish caught in each of Pakistan's marine
waters and inland waters. Marine waters are been given and inland waters are been given. तो आपको ये चीज़ आपका एग्जामिनर पूछेगा कि पाकिस्तान में जो मरीन वाटर्स में फ़िश हम रेयर करते हैं या उसको ऑब्ज़र्व करते हैं, उनकी कुछ टाइप्स बताएँ। जैसे मैंने आपको बताया कि देयर आर 293 स्पीशीज़ ऑफ मरीन फ़िश अवेलेबल अराउंड पाकिस्तान, और इनलैंड में हमारे पास ऑलमोस्ट जो है वो जो रिसोर्स है दैट इज़ इक्विवेलेंट टू ऑलमोस्ट 233 233 के करीब हमारे पास इनलैंड जो वाटर फ्रेश वाटर फिश है वो भी स्पीशीज़ पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल है, और हम टोटल 530 प्लस जो है वो हमारे पास स्पीशीज़ हैं इंक्लूडिंग मेरीन और फ्रेश वाटर, और 250 प्लस को जो है वो ऑलरेडी हम यूटिलाइज कर रहे हैं फॉर डिफरेंट नेसेसिटीज़ एंड डिफरेंट पर्पसेस। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे आप आंसर करोगे, डेफिनेटली इसके लिए आपको कैटेगरीज बनानी पड़ती हैं इनलैंड फिश की, कि पाकिस्तान में कौन कौन सी इनलैंड वैरायटी है, कौन कौन सी मेरीन वैरायटी है। और ये याद रखिएगा कि मेरीन इनलैंड या फ्रेश वाटर फिश नहीं हो सकती, और फ्रेश वाटर मेरीन में एग्जिस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि इनका जो इन्वायरमेंट है दोनों पानियों का दैट इज़ इंटायरली डिफरेंट, और इसी से इनकी जो स्पीशीज़ हैं वो इम्पैक्ट भी होती हैं, और उनकी ग्रोथ उनकी एग्जिस्टेंस भी पॉसिबल होती है। तो यहाँ पर आई विल बी शोइंग यू अ इन्फोग्राफ जो आपको काफ़ी हद तक हेल्प करेगा आंसर दिस क्वेश्चन। और इसके लिए आप अपने डिस्प्ले स्क्रीन पर फोकस कीजिए सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड हाउ टू आंसर दिस वेरिएंट इन अ एफिशिएंट वे। और ये जो आपका इन्फोग्राफ है ये इसी चीज़ को कम्प्लीमेंट कर रहा है जो पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट स्पीशीज़ मिलती हैं फिश की, उसके कॉन्टेक्स्ट में आपको नॉलेज गेन करना होता है। यहाँ पर अगर आप देखो तो पाकिस्तान के अंदर वी हैव फ्रेश वाटर फिश, पंजाब में स्पेशली तो आपको वो क्वेश्चन कहेगा टू व्हाट एक्सटेंट फर्दर डेवलपमेंट ऑफ फिशिंग इज पॉसिबल। तो पंजाब में रहू जो वार्म वाटर फिश है इसका काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है। चनाब में, जेहलम में, रावी में वी आर ऑलरेडी कैचिंग दिस फिश, और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में ये बहुत फेमस है व्हेन इट कम्स टू द डाइटरी कंजम्पशन ऑफ पाकिस्तानी नेशन एट लार्ज। उसके बाद अगर हम देखें तो गोल्डन माशीर, ये आपकी नेशनल फ़िश है, पाकिस्तान की नेशनल फ़िश का नाम गोल्डन माशीर है। और उसके बाद स्नो ट्राउट है, नॉर्दर्न एरियाज़ की स्पेशलिटी है, रॉयल्टी है, आपकी स्वात रीजन की, हिंदू कुश रीजन की, कराकरम रीजन की कोल्ड वाटर फ़िश है बट फ्रेश वाटर फ़िश है। उसके बाद आपके पास कॉमन कार्प है, और कॉमन कार्प के बाद जो सबसे यूनिक और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर एक एसेट है इन दिस कॉन्टेक्स्ट दैट इज़ रेनबो ट्राउट जो आपके स्वात और गिलगित रिवर में अबंडेंस में अवेलेबल है। तो ये आपके पास कुछ ऐसी फ्रेश वाटर फिशेस हैं जो आप इस तरह के क्वेश्चन में प्लेस कर सकते हो। यू कैन मेंशन द नेम ऑफ पल्ला मछली एज वेल। पल्ला सिंध की एक रॉयल्टी है, और इंडस रिवर जहाँ पर इंडस डेल्टा बनता है वहाँ पर ये पल्ला जो मछली है इसकी काफ़ी हद तक मिकदार पाकिस्तान में अवेलेबल है फॉर योर ऑब्जर्वेशन। व्हेन इट कम्स टू द मेरीन फिश, पाकिस्तान के पास श्रिम्स हैं, वी हैव cuttlefish, we have basically one of the most famous one is ray, then sharks are there, ये pomfret है, it's very famous, sardine है, it's very famous, then we have one of the popular fish in Karachi and surrounding areas of Balochistan that is snapper। और ये सारी जो फिशेस हैं ये आप अपने एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस में एग्जाम्पलीफाई कर सकते हो, या 6 मार्कर क्वेश्चंस में भी आप इनकी एग्जांपल्स देके अपने आर्गुमेंट्स बिल्ड कर सकते हो। जैसे ये पॉम्फ्रेट है ये कराची के सराउंडिंग में 90% पकड़ी जाती है, तो आप इसको एग्जाम्पलीफाई कर सकते हो। स्नो ट्राउट आपके कराक्रम में अवेलेबल है, आपके नारान कगान गिलगित इन एरियाज़ में काफ़ी कॉमन है, 3000 पर केजी इसकी प्राइस है, तो इसकी काफ़ी अच्छी कमर्शियल वैल्यू भी है। जब आप पल्ला की बात करते हो तो दैट इज़ इन सिंध, एंड जब रहू की बात करते हो दैट इज़ इन पंजाब। तो यही जो आर्ग्यूमेंट्स हैं ये आप 6 मार्कर क्वेश्चंस के अंदर एग्जाम्पलीफिकेशन के कॉन्टेक्स्ट में अपने एग्जामिनर को कन्विंस करने के लिए यूज़ करोगे। ये इस तरह से आपके एक और असेसमेंट ऑब्जेक्टिव को कंप्लीमेंट करता है पॉइंट। लेट्स रोल बैक ऑन द सेम पॉइंट वेयर वी स्टार्टेड फ्रॉम, दैट इज़ कि कैसे आपको क्वेश्चंस डिफरेंट किस्म के टॉपिकल्स के अंदर पूछे गए हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर 2 कॉलम्स बनाए गए, और मेरीन वाटर्स में पूछा गया कौन सी स्पीशीज़ मिलती हैं पाकिस्तान में, और इनलैंड वाटर्स में कौन-कौन सी मिलती हैं। यहाँ पर माय आंसर विल बी पल्ला, और यहाँ पर रहू, और मेरीन वाटर्स में आई विल राइट अबाउट श्रिम्प्स and rays or skates even as well to let examiner give me
मार्क्स आउट ऑफ दिस क्वेश्चन। उसके अलावा देखते हैं जी अपने असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स को। दिस वाज द सेकंड असेसमेंट ऑब्जेक्टिव एंड द क्वेश्चन वाज, the assessment objective was, give examples of the fish caught in both marine and inland waters and of the fish reared on fish farms। तो अगर आप नॉर्दर्न एरियाज में चले जाओ तो आपके पास ट्राउट फार्म्स हैं। फिश फार्म के कॉन्टेक्स्ट में आप ट्राउट को लिख सकते हो। स्नो ट्राउट या रेनबो ट्राउट दोनों स्पीशीज फिश फार्म पे रियर की जाती हैं। पंजाब की बात करो तो रहू, काला रहू, इस तरह की जो आपके पास एग्जांपल्स हैं आप वो दे सकते हो। और अगर सिंध की बात करो तो पल्ला की फार्मिंग वहाँ पे की जाती है एट लार्ज। तो ये असेसमेंट ऑब्जेक्टिव आपका लाइव मैंने आपको डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखा दिया कि कैसे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस में प्लेस इन किया जाता है फॉर योर असेसमेंट्स। मैं इसकी एक और एग्जांपल दे देता हूँ। बार बार ये चीज़ें आपके एग्जामिनर ने आपसे टेस्ट की थ्रू सेटिंग द क्वेश्चंस। जैसे देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें उसने कुछ ऑप्शंस भी दिए आपको, साथ आपको करेक्ट कैटेगरीज में इनको मेंशन करने का भी कहा। तो मानशीर जो है वो पाकिस्तान की नेशनल फिश है, इनलैंड और फ्रेश वाटर फिश है। इसके अलावा इनमें अगर ऑप्शंस में देखें तो हमारे पास ट्राउट है, फिर पल्ला है, उसके बाद रहू है। और आंसर विल बी डन इफेक्टिवली। शार्क मेरीन फिश है, फिर आप इसके अंदर रे लिख सकते हो। उसके अलावा आप स्केट लिख सकते हो। उसके अलावा आप ड्रम लिख सकते हो। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन जो है दैट वुड बी मार्क्ड एज राइट। ये आपका एक और असेसमेंट ऑब्जेक्टिव है जो आपकी सिंपल सी इंसाइट, सिंपल सी ऑब्जर्वेशन ऑफ असेसमेंट ऑब्जेक्टिव से आंसर करना पॉसिबल हुआ। अब लेट्स सी मोर, थर्ड असेसमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है और क्या हमें फर्दर पता होना चाहिए टू आंसर चैप्टर नंबर 6 विच इज़ अ वेरी इजी चैप्टर एंड could be a very handy part of your preparations in Pakistan Studies P2। और बहुत सिंपल, बहुत एक लाइव और इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है उन स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए जिनको इंटरेस्ट है इस तरह की चीज़ों को एक्सप्लोर करने का। पाकिस्तान में बेटे वी हैव अल्हम्दुलिल्लाह दिस नेचुरल रिसोर्स इन अबंडेंस। द ओनली कंसर्न एंड ओनली बेसिकली द problem which we are first facing in this context is lack of awareness among Pakistani nation about such natural resources। थर्ड असेसमेंट ऑब्जेक्टिव देखते हैं जी, गिव एग्जांपल्स ऑफ द फिश पोर्ट्स ऑन बोथ द बलूचिस्तान एंड सिंध कोस्ट। तो मेरीन फिशिंग पाकिस्तान में कहाँ कहाँ की जा रही है, दिस इज द सिंपल असेसमेंट ऑब्जेक्टिव। अब इस असेसमेंट ऑब्जेक्टिव को कैसे उसने एग्जाम स्टाइल क्वेश्चंस में कन्वर्ट किया, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, फिर उसके बाद आपसे इस क्वेश्चन के आंसर के कॉन्टेक्स्ट में भी बात कर लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ही गिव यू अ मैप ऑफ पाकिस्तान एंड द मैप इज ऑफ मकरान कोस्ट और सिंध कोस्ट, और वो आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पर कोई दो ऐसे फिशिंग हार्बर्स के नाम बताइए, नेम टू फिशिंग पोर्ट्स ऑन दिस कोस्ट लाइन। यू कैन गो फॉर गवादर, you can write about Pasni, you can write about Ormara, you can write about Port Qasim, you can write about Jiwani even as well, Lasbela coastal line even as well. So these are those areas on the coastal region of Makran or Sindh coast where we are having the practice of fish, and we are been utilizing our natural resource in the sea to get benefit out of such type of resources we have as a country। तो यहाँ पर देखिए बहुत सिंपल सा आंसर है। लेट मी ओपन अप अ इन्फोग्राफ, और इस इन्फोग्राफ की जो इन्फॉर्मेशन है उसको आप फिर दोबारा, मैं उसकी इंपॉर्टेंस की तरफ जाऊंगा कि असेसमेंट ऑब्जेक्टिव शीट के अंदर फिल कर लेंगे, फिर इसको मेमोराइज करेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस को आंसर करने में आपको बहुत ईज होगी एट योर एग्जाम डे और प्रिपरेशंस ड्यूरिंग पाकिस्तान स्टडीज P2's पे कंटेंट। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो वी हैव डिफरेंट मेजर फिशिंग जोन्स इन पाकिस्तान। सिंध कोस्ट पे वी हैव कराची फिश हार्बर, 90% फिशिंग यहाँ पे की जा रही है। श्रिम्प, टूना यहाँ से पकड़ी जा रही है मेनली। कोरंगी हार्बर है, इब्राहिम हैदरी है, किमाड़ी है, पोर्ट कासिम है। और अगर हम बलूचिस्तान की बात करें तो मकरान कोस्ट, बलूचिस्तान के कोस्टल रीजन को बोलते हैं। टोटल लेंथ हमारी 1046 किलोमीटर है कोस्टल पाकिस्तान की, जिसमें से गवादर फिश पोर्ट है, पसनी फिश पोर्ट है, जवानी फिशिंग हार्बर है, और मारा है, और पसनी है। तो ये सारे आपके लसबेला कोस्टल लाइन है। तो ये सारे के सारे आपके जो हैं वो मेरीन फिशिंग के कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट फिशिंग जोन्स हैं पाकिस्तान के अंदर। This is our third assessment objective, I guess, from this chapter. So let's roll on towards the fourth one। और ये चैप्टर आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा आंसर करना।
डिफरेंट क्वेश्चंस के कॉन्टेक्स्ट में, और मैं आपको आगे चल के टॉपिकल सॉल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में बताऊंगा भी। मज़ीद इस पे हम बात करेंगे कि कैसे डिफरेंट कंपोनेंट्स कि कैसे डिफरेंट असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स डिफरेंट क्वेश्चंस को आंसर करने में हेल्प आउट करते हैं। अब यहाँ पे जी फोर्थ वन इज मच इजियर, डिस्क्राइब द यूज ऑफ फिश कॉट फ्रॉम पाकिस्तान मेरीन और इनलैंड वाटर्स। तो इसमें सबसे पहली बात तो ये है बेटे, इट्स अ सोर्स ऑफ डाइटरी नीड्स, फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करता है। अगर आप मछली पकड़ते हैं तो डेफिनेटली आप में से बहुत से लोग इसको कंज्यूम करते हैं एज पार्ट ऑफ डाइट। उसके अलावा इसका जो कमर्शियल बेनिफिट है वो ये है कि इसके जो स्केल्स होते हैं उससे आप फर्टिलाइजर्स बनाते हैं, पोल्ट्री फीड बनाते हैं, फिर फिश से आप ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, उस ऑयल से आप मेडिसिन बनाते हैं। फिर जो मेन इसका यूज़ है दैट इज़ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एक्सपोर्ट्स इवन एज वेल। बीइंग अ मुस्लिम कंट्री, जो स्पीशीज़ हम कंज्यूम नहीं करते वो हम डिफरेंट कंट्रीज़ को, जैसे श्रीलंका है, मलेशिया है, थाईलैंड है, जापान है, कोरिया है, उनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। टूना इज़ वन ऑफ द एग्जांपल जिसकी बहुत अच्छी वर्थ है इंटरनेशनल मार्केट में। हम उसको एक्सपोर्ट करके रेवेन्यू जनरेशन के कॉन्टेक्स्ट में भी यूटिलाइज कर सकते हैं। लेट मी शो यू वन ऑफ द क्वेश्चन विच इज़ कंप्लीमेंटिंग द सेम असेसमेंट ऑब्जेक्टिव। जैसे हमने पिछले अभी असेसमेंट ऑब्जेक्टिव को किया, तो यहाँ पे क्वेश्चन है नेम अ फिशिंग पोर्ट ऑन द सिंध कोस्ट। तो आप यहाँ पे पोर्ट कासिम लिख दो, आप इब्राहिम हैदरी लिख दो, किमाड़ी लिख दो, कराची फिश हार्बर लिख दो। तो योर आंसर इज गोइंग टू बी राइट बेसिकली दिस पॉइंट ऑफ योर ऑब्जर्वेशन। अब इसी तरह से अगर हम देखें कि जी यूजेस ऑफ फिश, गिव टू यूजेस ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ फिश फॉर्म्स। तो एक तो डाइटरी है, ठीक है, आप कंजम्पशन करते हो उसको एज अ सोर्स ऑफ फूड। दूसरा बेटे आप इसका ये करते हो कि ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हो जिसके साथ मेडिसिन्स बनती हैं। उसके अलावा अगर आप लिखना चाहते हो तो आप पोल्ट्री फीड और फर्टिलाइजर मेकिंग इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हो थ्रू द वेस्ट ऑफ दिस फिश। तो आप सिंपली इसको मेंशन करके इस तरह के असेसमेंट ऑब्जेक्टिव को कॉप कर सकते हो इफेक्टिवली। नेक्स्ट वन इज एक्सप्लेन इम्प्रूवमेंट्स इन फिशिंग मेथड एंड प्रोसेसिंग टेक्निक्स। ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा पूछा गया, मल्टीपल टाइम्स डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 6 मार्कर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 मार्कर्स, 3 मार्कर्स भी आते हैं, जैसे ये आपके डिस्प्ले स्क्रीन पे एग्जांपल है। एक्सप्लेन टू इम्प्रूवमेंट्स मेड इन फिश प्रोसेसिंग टेक्निक्स इन पाकिस्तान, you should develop your answer. So you should develop your answer is the command word. So remember, you have to explain your ideas, you have to elaborate, detail your ideas, और आपने मैक्सिमम कोशिश करनी है कि उसमें लेंथ दें विद एग्जांपल्स टू गेट योर 4 आउट ऑफ 4 डन और 3 आउट ऑफ 3 डन विद द कमांड वर्ड यू शुड डेवलप योर आंसर। अब क्वेश्चन वो कह रहा है और असेसमेंट ऑब्जेक्टिव भी यही था कि कौन सी रीसेंट टेक्निक्स हैं जो फिश प्रोसेसिंग में यूज़ की जा रही हैं पाकिस्तान में, जिससे इम्प्रूवमेंट आ रही है इस सेक्टर के अंदर। तो सिंपल सा बताओगे बेटे कि 27 के करीब आइस फैक्ट्रीज रिसेंट गवर्नमेंट्स ने सिंध कोस्ट और बलूचिस्तान के कोस्टल रीजन्स में इस्टेब्लिश की हैं, ताकि जो फ्रेशनेस ऑफ अ फिश है आफ्टर कैच दैट कैन बी इंश्योर्ड। और अगर आप रेफ्रिजरेशन और स्टोरिंग कैपेसिटीज़ दोगे ऑन शिप, तो इवन इस चीज़ को हम और बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो अभी जो फ्रीजिंग और जो चिलर्स हैं दे आर बीन प्रोवाइडेड टू द बोट्स, जिसके थ्रू इम्प्रूव किया जा रहा है फिश प्रोसेसिंग टेक्निक्स को। उसके अलावा जो हाइजेनिक हैंडलिंग है उसके कॉन्टेक्स्ट में हमारे जो फिशिंग कम्युनिटी से लोग एसोसिएटेड हैं उनको प्रोवाइड की जा रही हैं, लाइक वोकेशनल ट्रेनिंग सेशंस दिए जा रहे हैं, ताकि वो ये चीज़ इंश्योर कर सकें कि हाइजेनिकली कैसे हमने फ़िश को मैनेज करना है एज अ नेचुरल रिसोर्स। अनफॉर्चुनेटली जो हमारे ट्रेडिशनल फिशिंग प्रैक्टिसेस हैं उनमें मिस यूज़ होता है फ़िश का, या उनको मिस हैंडल किया जाता है एक बड़े ही गंदे से एटमॉस्फेयर में या एक बड़े ही रफ से वे में उनको मैनेज किया जाता है, जिसकी वजह से उनकी क्वालिटी और उनकी जो बेसिकली आउटपुट है वो नहीं आ पाती जिसका हम पोटेंशियल रखते हैं एज अ नेशन। और जो तीसरी हम बता सकते हैं इम्प्रूवमेंट वो देखने को मिल रही है पाकिस्तान में प्रोसेसिंग टेक्निक में, वो कैनिंग, सिल्टिंग, जो पैकिंग की जो इंडस्ट्री है दैट इज़ बिन एस्टैब्लिश्ड नियर कराची एंड ग्वादर इवन एज वेल, ताकि जो फ्रेश फिश और उसकी प्रिजर्वेशन और लॉन्ग लास्टिंग या लॉन्ग शेल्फ लाइफ है उसके कॉन्टेक्स्ट में जो इसको केमिकलाइज प्रोसेस किए जा रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्प्रूवमेंट विच इज़ बिन मेड इन द रिसेंट ईयर्स इन फिश प्रोसेसिंग टेक्निक्स। स्पेशली कैन करना, उसको प्रॉपर पैक करना,
उसको प्रॉपर स्लाइसिंग या चॉपिंग करने के बाद प्रिजर्व करना, सिल्टिंग के थ्रू या डिफरेंट केमिकल्स के थ्रू, इंडस्ट्रियल पर्जर्वेंट्स के थ्रू, ये एक फिशिंग इंप्रूवमेंट है जो रिसेंट ईयर्स में हमने देखी गई। और यही आप सस्टेनेबल फिशिंग प्रैक्टिसेस में मेंशन करोगे कि इस तरह से हम सस्टेनेबल इम्प्रूवमेंट भी ला सकते हैं फिशिंग में, और फिश प्रोसेसिंग टेक्निक्स को भी बेहतर तरीके से पाकिस्तान में एक्सरसाइज कर सकते हैं। येट अगेन दिस अ क्वेश्चन, फिश आर यूज्ड फॉर फूड स्टेट टू अदर यूजेस ऑफ फिश। इसमें आप क्या मेंशन करोगे? डेफिनेटली इट इज़ अ सोर्स ऑफ कंजम्पशन फॉर ह्यूमन बींग्स। तो फर्स्ट आप यूज जो मेंशन करोगे वो एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल फॉर मेकिंग मेडिसिन लिख सकते हो आप। दूसरा आप लिख सकते हो कि इट्स स्केल्स एंड वेस्ट इज यूज फॉर मेकिंग पोल्ट्री फीड और फर्टिलाइजर्स इवन एज वेल टू गेट योर 2 मार्क्स आउट ऑफ दिस क्वेश्चन विद ईज। तो हर मेरा जो है वो असेसमेंट ऑब्जेक्टिव या लर्निंग ऑब्जेक्टिव कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्वेश्चन में मुझे आंसर करने में हेल्प आउट कर रहा है। तो अभी मैंने देखा कि एक्सप्लेन इम्प्रूवमेंट्स इन फिशिंग मेथड्स, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर रहा हूँ, 14 मार्क 6 मार्कर में भी आ सकता है, 4 मार्कर में भी आ सकता है। तो इम्प्रूवमेंट्स क्या आ रही हैं बेटे? सिंपल सी चीज़ है कि उसको कैनिंग और प्रिजर्वेशन के कॉन्टेक्स्ट में इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश की जा रही हैं कोस्टल रीजन्स पे, ताकि उसकी फ्रेश डिलीवरी हो सके, एंड यूज़र तक शेल्फ लाइफ इंक्रीज़ हो सके। फिर आइस फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश की जा रही हैं। फिर हाइजेनिक जो है वो वे में इसको हैंडल करने के टिप्स एंड ट्रिक्स डिलीवर की जा रही हैं, नॉलेज दी जा रही हैं, ट्रेनिंग सेशंस लिए जा रहे हैं बाय फिशरीज डिपार्टमेंट इन पाकिस्तान। वी हैव अ डिपार्टमेंट व्हिच डील्स विद दिस सेक्टर एंड दैट इज फिशरीज डिपार्टमेंट ऑफ पाकिस्तान, जो बेसिकली वाइल्ड लाइफ के साथ कोऑर्डिनेशन में फिश की जो एग्जिस्टेंस है और फिश की जो मैनेजमेंट एज अ नेचुरल रिसोर्स, इसको पाकिस्तान में इंश्योर कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके 6 मार्कर्स में कंप्लीमेंट करेंगी। नेक्स्ट देखते हैं जो लास्ट असेसमेंट ऑब्जेक्टिव है, फिर हम अपने टॉपिकल्स की तरफ चलते हैं बिफोर वी आर गोइंग टू वाइंड अप आवर सेशन। यहाँ पे है जी, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स फेसिंग द फिशिंग इंडस्ट्री एंड एवेलुएट द पॉसिबिलिटीज ऑफ इट्स फर्दर डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी। प्रॉब्लम्स क्या हैं जी? लेट मी शो यू अ इन्फोग्राफ। बहुत इंपॉर्टेंट असेसमेंट ऑब्जेक्टिव है। एक्सक्यूज मी फॉर अ सेकेंड। बहुत दफ़ा पूछा गया। तो हम इसको देखते हैं जी कि क्या रिसेंटली जो प्रॉब्लम्स हैं हमें इस सेक्टर में हैं, और क्यों हम इस सेक्टर से 100% आउटपुट नहीं ले पा रहे हैं, इवन दो ये बहुत वैल्यूएबल रिसोर्स है पाकिस्तान का, और इससे हम बहुत बेहतर कर सकते हैं। सबसे बड़ा तो मैं समझता हूँ कि जो पोर्ट्स वगैरह, सी पोर्ट्स वगैरह स्टैब्लिश हो रहे हैं स्पेशली कराची और गवादर के सराउंडिंग में, वो उसके लिए हमें क्लियरेंस ऑफ कोस्टल रीजन्स चाहिए होती है। तो जब हमें क्लियरेंस ऑफ कोस्टल रीजन चाहिए होती है, तो जो मैंग्रोव्स हैं दे आर बीन डिस्ट्रॉयड बिकॉज कोस्टल रीजन्स पे हमारे पास यूजुअली मैंग्रोव्स होते हैं। और मैंग्रोव्स जो हैं वो, जैसा कि मैंने आपसे अर्ज़ किया था, इसके लिए एक नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं फ़िश के लिए। तो मैंग्रोव्स की जो डिस्ट्रक्शन है, दैट इज़ अ मेजर प्रॉब्लम वी आर फेसिंग इन दिस रिगार्ड। और अगर हम मैंग्रोव्स के स्वैम्प्स को या अपने मैंग्रोव फॉरेस्ट को कंजर्व नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली फिशिंग इज़ नॉट गोइंग टू बी दैट मच सस्टेनेबल फॉर अस। इसके अलावा इसके अलावा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, दैट इज़ क्लाइमेट चेंज। इस पे इसका फिशिंग कल्चर पे भी बहुत गहरा इम्पैक्ट आता है। जब राइजिंग सी लेवल जो है दैट इज़ गोइंग टू बी हैविंग कॉन्टिन्यूस शिफ्ट, तो जो फिश है जो उसके अंदर एग्जिस्ट करती है वो भी अपने पैटर्न ऑफ लाइफ को चेंज करती है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ ए वाटर पोल्यूशन इन पाकिस्तान स्पेशली, जो कि इंडस्ट्रियल वेस्ट की डंपिंग, ऑयल स्पिल्स, प्लास्टिक पोल्यूटिंग, इसकी वजह से होता है। और डिफरेंट जो फिशेस हैं पाकिस्तान के अंदर, स्पीशीज़ हैं स्पेशली मरीन वाटर में, दे आर इन डेंजर बिकॉज ऑफ द वाटर पोल्यूशन विच इज़ बिन डन थ्रू डंपिंग ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड ऑयल स्पिल्स फ्रॉम द शिप्स विच आर ट्रैवलिंग इन द ओशंस ऑफ अरेबियन सी और लाइक अराउंड अस। तो इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो क्लाइमेट चेंज के बाद जो सबसे क्रिटिकल है, जिसको आप एग्जामिनर ने भी पूछा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस में, मुझे अपॉर्चुनिटी दीजिए कि मैं आपको वो भी दिखा सकूं कि कैसे आपके एग्जामिनर ने इस असेसमेंट ऑब्जेक्टिव को आपकी परफॉर्मेंस की एवेलुएशन के लिए सेट किया डिफरेंट क्वेश्चंस के अंदर इन द पास्ट। उसकी एक छोटी सी रिफ्लेक्शन ये है, बाय कैच और ओवर फिशिंग जो है उस पर बहुत दफ़ा क्वेश्चन आ चुके हुए हैं। बाय कैच क्या होती है, ओवर फिशिंग क्या होती है, इसकी तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखिए अपने पास पेपर क्वेश्चंस के अंदर, तो बाय कैच और ओवर फिशिंग के ऊपर प्रॉपर क्वेश्चंस आर बिन सेट। यहाँ पर आपको क्वेश्चन ये आया कि व्हाट इज मेंट बाय ओवर फिशिंग, व्हाई डज इट अकर्स। ओवर फिशिंग ये होती है बेटे कि जो एक साल में फिश प्रोड्यूस हो रही है नेचुरली, उसकी जो लिमिट है उसको क्रॉस करके उसको पकड़ना,
और नेक्स्ट ईयर के लिए उसके रिजर्व्स को डैमेज करना, दैट इज कॉल्ड एज ओवर फिशिंग। अनवांटेड जो है या मोर देन लिमिट फिशिंग करना, दैट इज कॉल्ड एज ओवर फिशिंग। और इसकी जो रीज़न है दैट इज़ यूज़ ऑफ इलीगल नेट्स इन पाकिस्तान स्पेशली। और अगर पाकिस्तान के अंदर हम यूज़ करते हैं इलीगल नेट्स जिनके होल्स जो हैं दे आर नॉट ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, तो बेबी फिश इज़ गोइंग टू बी कॉट एंड दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी एबल टू progress or going to grow for the next year, and that will ultimately cause overfishing. Bycatch is a major curse in Pakistan. Bycatch is catching the fish which is not ready to be consumed, or catching the baby fish is called bycatch. तो ये दो प्रॉब्लम्स आप पॉपुलरली मेंशन कर सकते हो। ओवरफिशिंग का हम यहाँ पर फॉर्मल आंसर भी पढ़ लेते हैं। ओवरफिशिंग इज व्हेन मोर फिश आर कॉट देन रिप्लेस्ड नेचुरली, many fish caught, small fish caught, too young to breed, caught in breeding season. All these are the features of the overfishing and why it occurs. मेरे ख्याल में तो सबसे बड़ी रीज़न जो है वो यूज़ ऑफ इलीगल नेट्स है, क्योंकि हमारी फ़िशिंग कम्युनिटी को इतनी अवेयरनेस नहीं है कि हम अगर इलीगल नेट यूज़ करेंगे अपनी सेल्फिश या सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच के लिए, तो दैट विल कॉज बेसिकली overfishing and bycatch, and that will reduce aquatic culture in Pakistan and the resource of fish even as well for our future development. ये जो है वो आपकी प्रॉब्लम्स हैं। फर्दर डेवलपमेंट कहाँ हो सकती है? इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन टू आंसर। आपको पता होना चाहिए चैप्टर वन में हमने रिवर्स को सीखा। हब रिवर है बलूचिस्तान में, काबुल रिवर है, फिर हमारे पास ज़ोब रिवर है, फिर हमारे पास दश्त रिवर है। फिर अगर नॉर्दर्न एरियाज़ की बात करें तो हमारे पास गिलगित रिवर है, स्वान रिवर है आपके पोटोहार रेंज के अंदर। फिर आपके पास नीलम रिवर है आज़ाद कश्मीर में, झेलम रिवर है आज़ाद कश्मीर में और पंजाब में। देन वी हैव गिलगित रिवर, स्वात रिवर। तो इन रिवर्स के साथ-साथ हम अपने जो है फिश फार्म्स बना सकते हैं और अपने फिश फार्म्स के थ्रू इनलैंड फिशिंग को प्रमोट कर सकते हैं। वी हैव अ 1406 किलोमीटर्स ऑफ कोस्टल रीजन, जिसमें हमारे पास कराची कोस्टल एरिया है या सिंध कोस्टल एरिया है। देन अरेबियन सी के साथ कनेक्टेड मकरान कोस्ट है पाकिस्तान की, वहाँ पर मेरीन फिशिंग कर सकते हैं। मैंग्रोव्स को प्लांट करें, उसको प्रिजर्व करें ताकि मैंग्रोव्स नर्सरीज के कॉन्टेक्स्ट में फ़िश को हमारे लिए ईजिली कैचेबल बनाएं। उसके अलावा अगर हम देखें तो एक डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें भी वो ये पूछ रहा है कि पाकिस्तान में जो मेजर फिश फार्म्स हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो फिश फार्म्स वाला जो क्वेश्चन है इसको कैसे आंसर करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन वाला, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन वाला क्वेश्चन हमेशा किसी ना किसी क्वेश्चन का पार्ट ज़रूर रहता है। तो इसमें आप सिंपली बताओगे कि किस टोपोग्राफी में नेचुरल रिसोर्स है, किस डायरेक्शन में है, नियर बाय सिटी, नियर बाय वाटर बॉडी कौन सी है, और डायरेक्शंस, टोपोग्राफी, प्रोविंसेस, इनके कॉन्टेक्स्ट में आप चीज़ों को एक्सप्लेन करते हुए इस चैप्टर को या इस क्वेश्चन को आप एड्रेस करोगे फॉर योर पॉजिटिव इनसाइट। जैसे लेट सपोज मैं इस क्वेश्चन को कैसे आंसर करूँगा, तो मैं सिंपल सा आंसर करूँगा कि फ्यू फिश फार्म्स आर लोकेटेड बिटवीन इंडस, झेलम, चनाब, रावी रिवर नियर लाहौर और towards north of Punjab, especially Gujranwala district and surrounding areas. Some fish farms are also located to the northwest of Pakistan, which is your Safed Ko range or Hindu Kush range near Sawat River, where trout farming is been done mostly. Then we have few fishing zones or fish farms in south of Pakistan, especially between Balochistan and Sindh province, which is Lasbela coastal line, और इनके सराउंडिंग में भी वी हैव हब रिवर जहाँ पर इनलैंड फिशिंग हो रही है, और कराची और हैदराबाद के दरमियान में भी वी हैव फ्यू फिशिंग सेंटर्स, और इंडस डेल्टा इज़ द टोपोग्राफी वेयर वी कैन फाइंड आउट दीज फिशिंग जोन्स इन पाकिस्तान। तो इस तरह से आप जो है वो अगर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की लाइंस गिवन है तो आप वो मेंशन करोगे टू गेट योर 3 आउट ऑफ 3 और 4 आउट ऑफ 4 इन दिस टाइप ऑफ अ क्वेश्चन डन। So, this is a short summary of chapter number 6, Fishing Industry of Pakistan. Before we are going to wind up, let's have a look at its uh, like 6 marker questions, because without 6 marker questions, we can't proceed for excellence in any of the chapter of geography. अगर हम बात करें 6 मार्कर्स की, तो यहाँ पर क्वेश्चन है sustainable fishing means protecting habitats and species of fish, leaving enough for future generations. Evaluate the potential for further sustainable development of the fishing industry in Pakistan. Sustainable
माइंड में रखना है आपने। पहले तो सबसे आप सस्टेनेबल को अंडरलाइन करेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे इसकी की जा सकती है, इस क्वेश्चन को मेनली एड्रेस करेंगे फॉर आर फ्यूचर इंसाइट ऑफ दिस चैप्टर और असेसमेंट्स ऑफ दिस चैप्टर। तो आप इसमें सिंपल सा बताओगे एग्जांपल्स के साथ कि पाकिस्तान के किस रीजन के अंदर किस वजह से हम सस्टेनेबल फिशिंग कर सकते हैं। जैसे आप बताओगे कि हमारे पास 1406 किलोमीटर्स ऑफ कोस्टल रीजन है और मैंग्रोव्स आर देयर नेचुरली। सो अगर हम मैंग्रोव्स को डिस्ट्रॉय नहीं करते और पोर्ट्स को एक सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टैब्लिश करते हैं, तो मैंग्रोव्स कुड प्रमोट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ फिशिंग इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। उसके अलावा अगर आप जो वाटर बॉडीज़ हैं, नीलम रिवर है आज़ाद कश्मीर में, जेहलम रिवर आज़ाद कश्मीर से आ रहा है आपके पास, उसके बाद गिलगित रिवर है, स्वात रिवर है, तो उसको अगर आप हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस एज सच इतनी अबंडेंस में नहीं बनाते और ऐसा जो बेसिकली एक्टिविटी है वो नहीं करते जो फिश हैबिटेट्स को या फिश स्पीशीज़ को इंडेंजर करे, तो ये भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ फिशिंग इंडस्ट्री के लिए काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है। फिर आप बता सकते हो कि बलूचिस्तान में इसका अच्छा पोटेंशियल है क्योंकि बलूचिस्तान में पॉपुलेशन कम है। बलूचिस्तान के अंदर जो हब रिवर है, दश्त रिवर है, ज़ोब रिवर है, वहाँ पर फ़िश फार्म्स बनाकर जो वहाँ की लोकल ब्रीड्स हैं, उनको जो है वो हम बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं फॉर आर बेटर ग्रोथ ऑफ दिस इंडस्ट्री। इस तरह के क्वेश्चंस हैं। फिर आपके पास एक 6 मार्क का क्वेश्चन, लास्ट जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस कर लेते हैं बिकॉज़ द लेसन इज़ नाउ ऑफ 50 मिनट्स ऑलमोस्ट इन रिकॉर्डिंग। तो इसको वाइंड अप करते हैं। 6 मार्कर क्वेश्चंस को देख लेते हैं। डेवलपिंग इनलैंड फिशिंग फार्मिंग हैज़ ग्रेट बेनिफिट्स फॉर द पीपल एंड इकोनॉमी एंड इट्स मोर सस्टेनेबल। तो पहले आप इसके 2 आर्गुमेंट्स लिखोगे, अगर आप इस पे एग्री करते हो कि कैसे डेवलपमेंट ऑफ इनलैंड फिशिंग कैन बी बेनिफिशियल फॉर द पीपल एंड द इकोनॉमी। ठीक है, लोगों के लिए फूड सिक्योरिटी होगी, लोगों के लिए सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो सकता है जो लोग दरियाओं के करीब रहते हैं सेटलमेंट्स में, और वो इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में डोमेस्टिक मार्केट में उसको सेल करके एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट कर सकते हैं। जैसा कि पाकिस्तान में 5,86,000 के करीब लोग जो हैं वो फिश इंडस्ट्री के साथ एसोसिएटेड हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो ये 5,86,000 जो लोग हैं वो अपनी इकोनॉमिक लाइफ को मैनेज कर सकते हैं थ्रू मैनेजिंग द इनलैंड फिशिंग। तो आप 2 इसके हक में लिखोगे, फिर 2 एक आप उसके हक में लिखोगे, बी पॉइंट के हक में, फिर उसको डिनाई भी करोगे कंक्लूजन में, और जिसके साथ आप ज़्यादा एग्री कर रहे हो, उसके बारे में आप कंक्लूजन मेंशन करोगे विद आर्गुमेंट्स। एग्ज़ाम्पल्स दोगे, जैसे इनलैंड फिशिंग की एग्ज़ाम्पल आप रहू दे सकते हो, ट्राउट दे सकते हो, पल्ला दे सकते हो, किन एरियाज़ में हो सकती है, वो एरियाज़ मेंशन कर सकते हो। तो इस तरह से यू कैन गेट योर मार्क्स डन इन अ 6 मार्कर क्वेश्चन। माय पॉइंट इज़ कि आप पहले व्यू ए पे 2 आर्गुमेंट्स लिखें, या व्यू बी पे एक आर्गुमेंट पॉजिटिव लिख के फिर उसको डिनाई करें और कंक्लूजन में अपने जिस व्यू से ज़्यादा एग्री करते हैं उसके ऊपर उसकी पॉजिटिव इनसाइट दें। तो योर क्वेश्चन इज गोइंग टू गेट योर 6 आउट ऑफ 6 मार्क्स। So this is a short summary of chapter number 6. Before I'm going to sign off, just let me give you a short review of the assessment objective sheet. आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे मैं उसको आपके लिए प्रेजेंट कर देता हूँ। इसमें आप पहले सबसे देखिएगा बेनिफिट्स एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ फिशिंग। इसमें आप इसके यूजेस बता सकते हैं, इसकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो एक्टिविटीज़ हैं उनके कॉन्टेक्स्ट में बता सकते हैं, इंडस्ट्रियल यूज़ के कॉन्टेक्स्ट में बता सकते हैं, ऑयल एक्सट्रैक्शन, फर्टिलाइजर्स, पोल्ट्री फीड एंड ऑल दैट। प्रॉब्लम्स ऑफ फिशिंग में बाय कैच ओवर फिशिंग को कभी मिस मत कीजिएगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ मैंग्रोव्स, यूज़ ऑफ इनलीगल नेट, वाटर पोल्यूशन, बायो कैच और ओवर फिशिंग हमेशा वो इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशंस पूछ सकता है, इसको ज़रूर कीजिएगा। फिश फार्मिंग एज अ सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ट्रेडर्स हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, नेट मेकर्स हैं जो नेट यूज़ होता है गिल नेट वगैरह इसको पकड़ने के लिए, बोट्स हैं जो इनको यूज़ होती हैं, बोट्स के लिए सेलर्स होंगे, सेलर्स के लिए आप जब हायरिंग करोगे तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज़ होंगी। जो इसको होलसेल मार्केट में सेल कर रहे हैं, जो फिर उसकी फर्टिलाइजर्स बना रहे हैं, वो तमाम लोग जो हैं जैसे ब्लैक स्मिथ है, कारपेंटर्स हैं, उनको जॉब्स मिलेंगी। इट इज़ वेरी सिंपल टू आंसर। मेथड्स यूज्ड इन पाकिस्तान फॉर फिशिंग, अगेन कमर्शियल फिशिंग है, स्मॉल स्केल फिशिंग है, गिल नेट मेथड ऑफ फिशिंग है, या फिश फार्म्स हैं। आप इन चारों मेथड्स को मेंशन कर सकते हो। मेजर फिशिंग zones, yes, inland fishing zones are rivers of Pakistan, canals of Pakistan, and your marine resources are sea, Gran coast, Mehran coast. फर्दर डेवलपमेंट जोब में हो सकती है, रिवर के पास, दश में हो सकती है, हब में हो सकती है, नीलम में हो सकती है।
झेलम रिवर के सराउंडिंग में हो सकती है, सवात में हो सकती है, स्वान रिवर पे हो सकती है। आपके पास जितने भी रिवर्स हैं उनके अराउंड, या आपके पास जो नेचुरल स्ट्रीम्स हैं उन पे हो सकती है। जैसे झील सैफुल मलूक की आप एग्जांपल लिख सकते हो कि वहाँ पर भी इवन अगर हम पानी जो वहाँ का है उसको भी हम छोटे छोटे पॉन्ड्स बना के कन्वर्ट करके उसमें ट्राउट रख सकते हैं, बिकॉज ट्राउट इज़ अ कोल्ड वाटर फिश। तो इस तरह से आप मेंशन कर सकते हो। So this chapter is quite simple to answer, with this hope that you will be able to understand it, and through this chapter's understanding you are going to get your 100% results. I'm signing off, and always wishing and praying that अल्लाह ताला आपको इस चैप्टर या बाकी चैप्टर्स में अच्छी सी कमांड अता फरमाए, और आप इन यूनिट्स की अंडरस्टैंडिंग से अपने ग्रेड्स को 100% इंश्योर कर सको पाकिस्तान स्टडीज़ के एग्ज़ाम में। इंशाल्लाह बहुत जल्दी चैप्टर नंबर 7 की जो है वो वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ हाज़िर हूँगा मैं इंशाल्लाह। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और चलते हुए मैं वंस अगेन आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, फॉलो द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ गेटिंग योर ए स्टार। दे आर learning the assessment objectives, solving the topicals, understanding the command words, practicing the 6 marker questions, learning case studies and examples. They are the simplest way to get your A star done in Pakistan studies. So stay blessed and Allah Hafiz.